हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी टू discuss about the syllabus for the year 2022 board exams, class 10 board exams, and also the marks distribution according to your question papers. Okay, so I thought of making this video and discuss with all of you regarding the syllabus and also the marks distribution in prose, poetry, rapid reader, okay, for both English and additional English for class 10. So for that, let me take you to my computer screen and let's start the discussion. So students, first of all, we will see the English distribution of marks of English syllabus for class 10 here, and this is your distribution of marks. Okay, so we have altogether of 4 sections in English, which is prose, poetry, rapid reader, which is your Oliver Twist, and grammar and composition. Okay, so we have total of 4 divisions in your English syllabus. Okay, now as you all know that you write exams out of 80. Your total marks in your annual exam is, okay, in your SSLC exams, आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स होता है उसका जो टोटल मार्क्स होता है वो है, टोटल इन द सेंस योर थ्योरी पेपर, ओके, दैट यू राइट इन द एग्जाम इज फॉर 80 मार्क्स. और 80 मार्क्स में से पास मार्क इज 24. एज यू ऑल नो, पास मार्क्स इज 24, राइट. तो 80 मार्क्स प्लस आप लोगों को इंटरनल दिया जाता है. यू आर गिवन इंटरनल मार्क्स ऑफ 20, सो दैट कम्स टू टोटल ऑफ 100. तो यहाँ पे जाके आपका 100 मार्क्स होता है. एंड आउट ऑफ 80 पास मार्क्स इज 24 एंड आउट ऑफ 100 पास मार्क्स इज 30. ठीक है, ओके. नाउ हियर इफ यू सी हियर प्रोज सेक्शन, इन प्रोज यू हैव 25 मार्क्स. ठीक है, प्रोज में आपका टोटल मार्क्स है 24. प्रोज मतलब स्टोरी सेक्शन. दिस इज योर स्टोरी सेक्शन एंड आई विल गिव यू अनदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो. प्रोज इज योर स्टोरी सेक्शन. पोइट्री इज पोइट्री सेक्शन ओनली. पोइट्री यू हैव 15 मार्क्स. ठीक है. रैपिड रीडर ऑलिवर ट्विस्ट, ओके, ऑलिवर ट्विस्ट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ऑलिवर ट्विस्ट 10 मार्क्स, right? And your grammar and composition is 30 marks. So the maximum number of marks that you have is in your grammar and composition. And actually students जो है वो grammar and composition में कम concentration देते हैं. They pay less attention to grammar and composition. मैंने कई बार देखा है, I've seen plenty of time students don't pay much attention to grammar and composition. Why? Because there's a tendency, मैं आपको एक tendency बोलता हूँ क्या है कि इफ़ यू सी लाइक से प्रीपोजिशंस, आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे दूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो विथ यू टुडे, बट लेट अस जस्ट सी. से फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशंस. इन प्रीपोजिशंस यू हैव टोटल ऑफ 4 प्रीपोजिशंस, ओके, एंड फॉर 4 प्रीपोजिशंस ईच ऑफ द प्रीपोजिशंस कैरीज हाफ मार्क्स. सो हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2. So students think for 2 marks we will study so many prepositions. For 2 marks what is going to happen? Let us leave preposition. हम लोग preposition छोड़ देंगे. 2 मार्क से क्या होगा? But with this 2 marks, then you will be able to score letter marks 80. आपका letter marks, अच्छे marks आपके आएंगे. Expected letter marks के नीचे अगर आपको मिलता है, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से जो पेट नहीं भरता है, you see with only 60% first division nothing is going to happen. You see, days are becoming more competitive. ठीक है ना. तो 25, 15, 10 और 30 को मिला के आ जाते, मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ के बारे में आपका. ठीक है, तो आपका टोटल आ जाता है 80 मार्क्स. एंड एज यू ऑल नो दैट 20 मार्क्स इंटरनल इज गिवन टू यू. सो 80 प्लस 20 इज 100. ठीक है. नाउ यू सी दैट आउट ऑफ 80, अब यहाँ पे कंडीशन है विच हैज़ बीन सेट बाई एम्बोस. एम्बोस ने एक कंडीशन सेट किया है यहाँ पे. Embos has set a condition here. What is the condition? Out of 80 you must score at least 24. अगर आपको 24 के नीचे मिलता है, if you score less than 24, say you got in theory out of 80 you got 21. Say for example out of 80 you got 21 and your internal marks 20. Say out of 20 you got say 10. I'm sorry, not here. Out of 20 you got 10. तो यहाँ थ्योरी में आपको
21 मिला और यहाँ इंटरनल असेसमेंट यू गॉट 10. So now you will count how 21 plus 10 is 21 in theory plus 10 in internal, total comes to 31. That means out of 100, what is the pass mark out of 100? As I told you, out of 100 the pass mark is 30. तो आपको लगता होगा मुझे तो 30 मिल गया, I got 30 so I passed. But no, you are wrong. ओके आप अगर आपको ये सिस्टम पता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ. इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट द सिस्टम देन इट्स ओके, बट इफ़ यू डोंट नो देन दो स्टूडेंट्स डू नॉट नो अबाउट दिस सिस्टम, लेट मी इन्फॉर्म यू देन. अगर आपको 24 नहीं मिलता है यहाँ पे, देन योर इंटरनल मार्क्स आर नॉट एडेड. आपको जो भी इंटरनल मार्क्स मिला वो ऐड नहीं होगा. तो एग्जाम में टोटल कैसे किया जाएगा आपको पता है? हाउ विल द टोटल बी एडेड? द टोटल विल बी एडेड लाइक दैट. यू गॉट 21 प्लस 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 31, लेकिन नहीं, इक्वल टू यहाँ पे 21 ही दिया जाएगा. दिस 21 विल बी गिवन हियर, दिस 10 मार्क्स विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि यू मस्ट एटलीस्ट स्कोर 24 हियर. अगर आपको 24 मिल गया यहाँ से, अगर आपको 24 मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए. अगर आपको इफ़ यू स्कोर आउट ऑफ 80, इफ़ यू स्कोर 24 एंड इन इंटरनल आउट ऑफ 20 इफ़ यू हैव स्कोर्ड 10, so it will come to 24 plus 10 is equal to 34. This is okay because you have scored 24 here. You have scored 24 here. लेकिन आपको 24 के अगर if you get below 24 then this internal marks will not be added. So please make sure that you score at least 24. Got it? Alright. Now let us see the, I hope you have understood this thing. So prose 25, poetry 15, rapid read 10 and grammar and composition 30, so total comes to 80 and then internal marks 20 English में. ठीक है, right? Now let us study the additional English syllabus. तो हम लोग अभी जो है additional English का जो है syllabus का distribution of marks हम लोग पहले देख लेते हैं, then we will go study the question papers. Okay? Now additional English you see for class 10 distribution of marks. Here we have 5 sections total: prose, poetry, then your plays which one? A Midsummer Night's Dream, and then you have composition, and then we have essay. And the distribution is for prose you have 22 marks, poetry 16 marks, play 15 marks, composition 19 marks, and essay 8 marks. Okay, एक ही essay, one essay for 8 marks. So total comes to 80, and in the same manner it is 20 is your internal marks, right? And as I told you in your English syllabus that if you don't score 24 at least out of 80, then your internal marks will not be added. You must score at least 24 to become eligible for the internal marks. आप लोगों को at least 24 स्कोर करना ही है out of 80. ठीक है ना? out of 80 आपको 24 यहाँ पे स्कोर करना है, तभी जाके आपका 20 मार्क्स ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा. ठीक है? सेम लाइक इंग्लिश, इट इज़ एप्लीकेबल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, एप्लीकेबल टू ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो, मैथ्स हो, या जितने भी सब्जेक्ट्स हो, दिस रूल, दिस 24 वाला रूल जो है आउट ऑफ 80, ये उन सब सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है, सेम रूल. ओके, सो नाउ लेट अस सी द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स. सो हियर वी हैव द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 का, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, और यहाँ पे है फॉर कैंडिडेट्स विद इंटरनल असेसमेंट. तो 80-24 यहाँ पे अप्लाई होता है. ये होता है विदाउट इंटरनल असेसमेंट. जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है 100 मार्क्स, उनका कोई इंटरनल नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी इंटरनल असेसमेंट. उनको स्कूल की तरफ से, क्योंकि वो लोग प्राइवेट कैंडिडेट्स है, दिस इज मेंट फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट्स एंड दिस इज मेंट फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स. ठीक है, तो रेगुलर कैंडिडेट्स में जो होते हैं 20 मार्क्स इंटरनल होता है, बट इन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स आपको जो है आउट ऑफ 100 ही एग्जाम देना पड़ता है. यू हैव टू गिव एग्जाम आउट ऑफ 100. सो देयर डायरेक्टली जो पास मार्क है वो 30 होता है, बट फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स यू मस्ट बिकम एलिजिबल टू गेट 20 मार्क्स. एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 24, जैसे कि मैंने आपको कहा. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ क्या आपका सेट हो रहा है. तो ये जब आपका एग्जाम्स जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर, स्टडी दीज रूल्स वेरी केयरफुली. दिस रूल्स आर, एंड दिस इज फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स. प्लीज स्टडी द रूल्स वेरी केयरफुली.
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी हियर दैट क्वेश्चन नंबर्स 1 to 15 आर टू बी आंसर्ड बाय ऑल कैंडिडेट्स, बोथ प्राइवेट एंड रेगुलर कैंडिडेट जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 15 all will have to answer for both private and regular, ठीक है। बट हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 to 19 आर टू बी आंसर्ड बाय कैंडिडेट्स विदाउट इंटरनल असेसमेंट, ये सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, दिस इज़ ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो आप लोग ध्यान से जो है ये रूल्स आप लोग जब आपको when you get the question papers during your exams, always read the rules very carefully, okay? These are the general instructions, okay? Now let us just scroll ahead. So as you know that after the pattern of your exam change, actually exam pattern जैसे आपका change हुआ था with along with your textbook, जब आपका exam pattern change हुआ तो पहले prose poetry से start होता था. In the beginning it used to start with prose poetry, rapid reader, and last section used to be grammar, but here they have done something उल्टा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा. आई एक्चुअली फेल दिस वेरी नाइस बिकॉज ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. सी इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश यू मस्ट बी वेरी एक्सपर्ट इन ग्रामर, और ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ग्रामर. तो सेक्शन ए से शुरू होता है आपका रीडिंग. दिस इज़ कॉम्प्रीहेंशन. यू आर गिवन अ पैसेज एंड देन बिलो यू विल बी गिवन सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चंस इन द सेंस it comes in the form of choose the correct answers. So this is your question and here you have your options and one option is correct, ठीक है. तो यहाँ पे composition में comprehension में आपका मार्क्स है 6. so if you count 1 2 3 फिर आपका यहाँ पे नीचे धीरे धीरे चल के जो है आपका 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन हाफ करके भी आते हैं, सम क्वेश्चंस लाइक कैरी हाफ 1 मार्क्स बट 6 मार्क्स, ठीक है. फिर आपका आता है राइटिंग बी विच इज़ राइटिंग एंड ग्रामर. तो ऊपर आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ आ गया आपका राइटिंग एंड ग्रामर. और आप जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा. डोंट स्पेंड मोर देन 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे से ऊपर इस सेक्शन को आप 1 घंटे से ऊपर मत लीजिए आंसर करने में. डोंट स्पेंड मोर देन 60 मिनट्स, डोंट स्पेंड मोर देन 1 आवर इन दिस सेक्शन, ठीक है. फिर यहाँ आपका आता है, देखिए आपका यहाँ पे ईमेल राइटिंग है. यू हैव ईमेल राइटिंग हियर और यू विल हैव टू राइट एन ईमेल हियर. सो यू हैव एक्चुअली 2021 में क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ था इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये वाला दिया गया है, ठीक है. तो हम लोग इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. बट यहाँ पे आपका तो ये लास्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो था 2021 का क्वेश्चन पेपर था. इट वाज 2021 क्वेश्चन पेपर बट दिस इज 2019 क्वेश्चन पेपर, ओके. दिस इज 2019 क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज 2019 क्वेश्चन पेपर बिकॉज यू हैव 100% सिलेबस, ठीक है ना. यू हैव 100% सिलेबस, सो आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंगली so that you can understand. अब यहाँ पे सेक्शन बी जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑलरेडी हियर जस्ट ओके एज यू कैन सी हियर दिस इज सेक्शन बी एंड इन सेक्शन बी यू हैव email writing or you have letter to the editor, okay. Letter writing, you have email writing or letter writing. Now let me tell you that in your syllabus there is no letter writing, but because email and letter is almost same, that is why they have included letter writing and there is always an option. So you can either write email or letter and it carries 6 marks, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं. अगर इफ़ वी सी क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव हियर यू हैव एन आर्टिकल राइटिंग. ये वाला जो है दिस इज आर्टिकल राइटिंग. यू हैव चॉइस हियर, ठीक है. आप इधर आप आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं, इधर यू कैन राइट आर्टिकल राइटिंग और यू कैन राइट अ स्टोरी राइटिंग. दिस इज स्टोरी राइटिंग, ठीक है. तो या तो आप आर्टिकल राइटिंग लिखिए या तो आप स्टोरी राइटिंग लिखिए. यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन एनी वन. हियर इट्स एनी वन, ठीक है. इवन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो एनी वन. यू कैन राइट एनी वन फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 2. तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से देख लीजिए. ईदर और आया तो या तो ये ईदर मतलब ईदर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक, एनी वन, फाइन. तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो. देन यू हैव टेंस हियर. दिस इज टेंस, okay. There are total of 8 blanks here, so you have 8 total questions and each carry half marks, so you have 4 marks. So tense में आपका 4 marks आता है and options are given here. Say for A you have 4 options, so you have to put any one option here. कोई भी एक option आप यहाँ पे डाल सकते हैं, any one option. Number B में आपका 4 options है total, तो you can put any one option here. Number C also, in this way it will go, okay. Then we just move on. फिर आपका EDM से you have to write any two. Please follow the instructions given in the question paper. आप हमेशा जो है क्वेश्चन पेपर में
इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, प्लीज़ फॉलो इंस्ट्रक्शंस, एनी टू, एनी वन, एनी थ्री, you follow this question, these instructions, because sometimes students they tend to miss these instructions, और गलती में क्या होता है कि आप यू राइट ऑल द फोर, यू सिंपली वेस्ट टाइम, आप जो है टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन का जो है सही जो है क्वेश्चन नंबर दीजिए 5A एंड यू जस्ट राइट डाउन द आंसर, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको क्वेश्चन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। Many students write construct suitable sentences with the following idioms 1 into 2 equal to 2. No need to write all these things in the exam. Just write the question number, the sub number properly and then just write the answer. ठीक है, तो out of 4 you have to write any 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 marks कैरी करता है for any 2, right? फिर यहाँ पे आता है आपका prepositions, जैसे कि मैंने आपको I just told you that students tend to think what, that say for example half marks 4 prepositions, ठीक है ना, तो it comes to 2 marks. So students tend to think that for 2 marks we will study so many prepositions. If you go on missing 2 marks, 2 marks, 1 mark like that, you will not be able to score good marks. So you have to pay extra attention to grammar also and composition part. And if you see, as you just saw, that grammar and composition carries the maximum marks, 30 total, ठीक है ना. So क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यहाँ पे आप प्रीपोजिशन देखिए. फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस चेंज. यू हैव रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे आपका आएगा रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस चेंज. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस चेंज. ओके, so this is your voice change and these two are reported speech. वो लोग मिक्स भी दे सकते हैं, there is no guarantee, right? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा and you have to write the correct answer. Okay, so it carries 4 marks. So क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अगर आप काउंट करें तो आपका 30 आएगा. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 जो आप काउंट करेंगे तो आपका आएगा 30 मार्क्स. ठीक है ना. नाउ लेट अस मूव टू दी literature section, questions and answers part. Section C. Section C here again, see, don't spend more than 60 minutes on this section. तो यहाँ पे आप फिर से जो है इंस्ट्रक्शन देखिए any to. तो यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप जो है यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिया. आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो एंड आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट. सेक्शन C, poetry, prose poetry, rapid reader, right? So here you have 6 marks, you have to write any 2. So 3 questions will be given, A, B, C. You have to write any 2. ठीक है, तो 6 marks here. So all of you know, I think, that about the marks distribution. Okay, then you have questions and answers. Here you have choose the correct answer. So these were questions and answers in the form of reference to the context. Here you have choose the correct answer. Choose the correct answer, all compulsory. Okay, 1 into 5 equal to 5. So you have 5 choose the correct answers and you'll have to answer all the 5. No option given here. Okay, same pattern will be followed in 2022 because syllabus hasn't changed. Then here, let's come here. Then you have short questions, 30 to 40 words, any 3 you have to write. There are 4 questions and you have to write any 3 and it carries 2 marks each. So 2 3s are 6. So 6 marks you have in question number 9. You have total of 6 marks, 2 plus 2 plus 2. You have to write any 3. Then you have long type questions. Okay, you have to write any one. There are 2 questions and you have to write any one, either or, and it carries 8 marks and 80 to 100 words. ठीक है, 100 से थोड़ा ज़्यादा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा लंबा ना हो, it should not be too long. Then you have again in the same pattern you have choose the correct answer. This is your poetry section. This is your poetry section. Okay, and here again you start with choose same pattern as your story section, prose section. So you have choose the correct answer here. ठीक है, लेकिन marks यहाँ पे है 3 marks. You have 3 marks for 3 questions. Okay, 3 choose the correct answers. Then here you have again same in the same manner, a reference to the context. You have to write any 2. Okay, 6 marks. So there will be A, B and C. 3 questions, you have to write any 2. And then here you have long type questions, descriptive essay type questions you have to write any one, either or. या तो आप ये वाला लिखिए या तो ये लिखिए.
Okay, this is, you have to write any one. I have already solved all the answers. You can check out that video. I'll give you the link in the description box. You can also sometimes check the I button on the top right. आप टॉप राइट में जाके जो है आई बटन चेक करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक दे देता हूँ. और जो एंड स्क्रीन होता है ना, जब मेरा वीडियो एंड होता है, आप वहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन, वहाँ पे भी आप जो है टैप करके यू कैन वॉच द वीडियो. ओके, आई विल प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन प्लस एंड स्क्रीन पे भी. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक लिखी, यू राइट एनी वन, टोटल मार्क्स 6, तो यहाँ पे 6 मार्क्स है. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पे हो गया आपका कितना मार्क्स, 25 मार्क्स यू ऑलरेडी हैव हियर. ठीक है, अब हम लोग जाएंगे सेक्शन डी विच इज़ रैपिड रीडर. तो यहाँ पे कहा गया है डोंट स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स एंड वी स्टार्ट विथ चूज द करेक्ट आंसर. सो इन चूज द करेक्ट आंसर इन रैपिड रीडर सेक्शन, टोटल मार्क्स इज 10. आपको अगर याद होगा टोटल मार्क्स 10, तो यहाँ पे 3 मार्क्स आता है चूज द करेक्ट आंसर. ओके, नो ऑप्शंस गिवन, यू हैव टू राइट ऑल A, B and C. ठीक है, and then you can pause the video also somewhere if you wish to, and then you have long type answers. This is for 7 marks, so 7 plus 3 equal to 10, and you have to write any one. So either you write number A. Number A is, it is like reference to the context only, RTC type. One line from the textbook will be given and 3 questions will be given, 2 marks plus 1 marks plus 4 marks, so 4 plus 1 plus 2 is 7. ठीक है, तो you have to write either A or B. So any one, या तो आप A लिखिए या तो B लिखिए. You have to write any one. This is for 80 marks regular candidates. ठीक है ना, 2 plus 2 plus 3, सेम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप का लाइन आता है आपका. और बाकी जो नीचे का जितना भी आपका क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे नहीं है, बट नीचे का आपका जितना भी क्वेश्चंस होगा, दोज आर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स. ठीक है, अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे तो आपके नीचे जो है और क्वेश्चंस होंगे, दोज विल बी फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स. बट फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स स्टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आपका आएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ लेट अस डिस्कस द एडिशनल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे फिर से मैंने 2019 का निकाला हुआ है. हियर ऑल्सो सेम रूल विल अप्लाई. 80 marks and 24, you have to score at least 24 in order to be eligible for the 20 marks internal. Okay, अगर आपको 24 नहीं मिलता है तो 20 marks will not be added. Time is 3 hours. And for regular candidates with internal assessment, new course. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बिगिनिंग होता है क्वेश्चंस एंड आंसर्स से. यू हैव टू राइट एनी वन. एडिशनल इंग्लिश इज क्वाइट ईजी बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर. ओके, सो एनी वन इन अबाउट 100 मार्क्स यू हैव टू राइट एनी वन. या तो ए लिखिए या तो बी लिखिए या तो सी लिखिए. टू मेनी ऑप्शंस गिवन बाय एम्बोस, सो यू हैव टू राइट एनी वन एंड इट कैरीज 6 मार्क्स. ठीक है, देन you have short type answers here. So there are 5 questions here and you have to write how many? Any 3. आपको कोई भी 3 लिखना होगा. You have to write any 3. 2 marks each. तो 2 into 3 equal to 6. सब जो है 2-2 मार्क करके है. ठीक है, आपको कोई भी 3 लिखना है यहाँ पे. Plenty of options given in additional English. Still I don't know why students do not score marks in additional English. Many students say that additional English is very easy, very difficult. But I don't think it is difficult. I feel all are easy because difficult कब होता है? When it is difficult, when it is asked outside the textbook. आपके अगर टेक्स्ट बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया एग्जाम में, तब तो डिफिकल्ट होगा. बट ऑल द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स ओनली. तो इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक्स वेरी नाइसली, हाउ कैन इट बी डिफिकल्ट? ओके, नाउ देन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. You have to write any 5. See, in true and false also they have given options, any 5 for 5 marks. So there are how many questions? Total 6 questions, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E and F. So you have to write any 5. See, any 5. Okay. Then again we come down to 80 marks. 80 words, long type answers, 5 marks. So you'll have to write any 1. Again see 3 options given, and this is your poetry section. This is your poetry section. ऊपर वाला आपका प्रोज सेक्शन था, ये वाला आपका पोइट्री सेक्शन. और पोइट्री सेक्शन में क्या है? पोइट्री सेक्शन में यू हैव 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट एनी.
वन, अगेन इट इज़ ईजी, और तो एनी वन, ठीक है ना। देन हम लोग थोड़े नीचे जाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। दिस इज़ वेरी इजी इफ़ यू मेमोराइज द पोम्स वेरी नाइसली। अगर आप पोम्स जो है अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ईजी हो जाएगा। दीज आर लाइन्स फ्रॉम द पोम्स। ये जो कविता जो आप पढ़ते, जो पोम्स आप पढ़ते, उसी में से जो है लाइन्स उठा के एक ब्लैंक रख दिया। एंड सी ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन हियर, सी हाउ इजी इट इज, ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन, यू जस्ट हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन एंड पुट इट हियर। तो आप पोम अगर थोड़े अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको मेमोराइज करने का भी जरूरत नहीं, यू नीड नॉट मेमोराइज द पोम्स ऑल्सो। इफ़ यू स्टडी द पोम्स वेरी नाइसली, एटलीस्ट आप अगर 2 3 4 बार 2 3 4 times if you read the poems very nicely, automatically you will understand. And see, options are given here, no, it is not asked in the exam that you have to write the poem out of your memory, the full poem out of your memory. They never ask this. Okay, so it's in the form of fill in the blanks and any 5 marks. Okay, so 6 total questions given, you have to write any 5. Then you have reference to the context. This is a different section, complete reference to the context, not like your English question paper. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए है, दिस इज फ्रॉम प्रोज पार्ट, योर स्टोरी पार्ट. ओके, एंड you have to choose any one from each group. It is compulsory that from group A you choose any one out of 3, you choose any one. 5 marks. ओके, तो यहाँ पे आपका 5 मार्क्स है, कोई भी एक आप चूज़ करेंगे आपको 5 मार्क्स जो है यहाँ पे अलॉट किया गया है. 5 मार्क्स हैव बीन अलॉटेड हियर. ओके, एंड ग्रुप बी इज़ योर पोइट्री सेक्शन. फ्रॉम ग्रुप बी अगेन यू हैव टू चूज़ एनी वन. ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए और बी से आप मिला के जो है यू चूज़ एनी वन. नो, ग्रुप ए यू हैव टू चूज़ एनी वन. ग्रुप बी विच इज़ पोइट्री, you'll have to choose any one. You have to choose any one, you have to choose, and 5 marks. So 5 into 2, group A से 5 marks, group B से 5 marks, so 5 into 2 equal to 10. समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है. Then we have descriptive type. Here descriptive type comes from your rapid reader section. Rapid reader section is the play part. Play means A Midsummer Night's Dream. I'm writing in short, A Midsummer Night's Dream. ठीक है, here also see you have to write any one. And what is the marks, full marks here for that answer? 6 marks. So A, B, C, out of A, B, C you have to write any one here. आपको कोई भी एक लिखना है यहाँ पे. Very easy. Okay. Then here you have short type questions. छोटे जो questions होते हैं, question answer type, short type. Okay. You have to write any two in 2 to 3 sentences. So out of A, B, C, D you have to write how many? Any 2. So you have to write any 2 out of A, B, C, D. Again very easy. ठीक है ना? Okay. फिर यहाँ पे आपका fill in the blanks है. Again fill in the blanks from, this is from your Midsummer Night's Dream. ये आपका Midsummer Night's Dream से आपका fill in the blanks आया है. ठीक है, तो this is here you see fill in the blanks is not given exactly from the textbook. They have actually these lines are exactly not from the textbook. They have just randomly given a line here and they have given options here. You have to write the correct option. These are not lines from the textbook. Okay, this is on the basis of your understanding of the text. So Helena told about the secret plan of Lysander. I have explained you. I have explained all the acts from A Midsummer Night's Dream. So Helena told about the secret plan of Lysander and Hermia to whom? Aegeus को बताया या Demetrius को बताया? अब Aegeus is the father of Hermia. Now Helena cannot tell Aegeus. ये तो इतने easy है समझने में. तो Helena told whom? Helena went because Helena loved Demetrius. She wanted to impress Demetrius. That is why she went and told about the secret plan that Lysander and Hermia are running away to Demetrius. तो यहाँ पे correct answer आपका होगा Demetrius. तो this is based on the understanding of the text. These are not exact lines from the textbook. ठीक है, तो आपके जो है कहानी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है. ओके, तो यू हैव टू राइट एनी 3. 4 टोटल क्वेश्चंस आर गिवन एंड यू हैव टू राइट एनी 3 मार्क्स. बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी. ट्रू एंड फॉल्स. हिपोलिटा लाइक द लॉ ऑफ एथेंस. सही या गलत मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिए. तो एनी 3 हैव टू राइट. ओबेरॉन वांटेड द चेंजलिंग बॉय एज द नाइट ऑफ हिज ट्रेन. ठीक है, ये भी आप देख लीजिए.
यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, या बॉटम कर दिया, यहाँ पे बॉटम होना चाहिए था. दिस काइंड ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स कुड बी देयर. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, नो नीड टू आस्क द इन्विजिलेटर ऑल्सो. आपको जो एग्जामिनर जो आपके रूम में होंगे जब आप एग्जाम देंगे तो ये छोटी छोटी बातें आप मत पूछा कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस विल नॉट बी बॉटम बोल के कोई कैरेक्टर है ही नहीं. दिस नो कैरेक्टर कॉल्ड बॉटम, इट्स बॉटम, राइट. तो बॉटम इज ऑल्सो नोन एज रॉबिन गुडफेलो. क्या ये सही है या गलत है? रीड द टेक्स्ट एंड आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू सॉल्व्ड फुल टेक्स्ट बुक से है क्वेश्चन पेपर्स मिला के जो है, एंड फ्रॉम द होल टेक्स्ट बुक आई एम गोइंग टू ब्रिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर एग्जाम्स, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल. फिर आता है आपका एम्प्लीफिकेशन पार्ट. एम्प्लीफिकेशन यू हैव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यू हैव टू राइट एनी वन, एनी वन फॉर 5 मार्क्स. फिर आपका यहाँ आता है समरी. समरी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक दिन, ठीक है. समरी क्या है यहाँ पे मैं लेट मी नॉट गो इन डिटेल here, okay. So you have option between summarize and diary writing, ठीक है. डायरी राइटिंग भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आपको यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिखना है, इधर समरी राइटिंग और डायरी राइटिंग, ये दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक लिखना है. यू हैव टू राइट एनी वन, एंड मिला के जो है 5 मार्क्स है, ओके. देन we move up. Here you see this is advertisement. एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा. आई मेड अ वीडियो ऑन एडवर्टाइजमेंट. यू कैन गो एंड चेक माई वीडियो लिस्ट. आप देख के जो है वीडियो लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, ओके. एडवर्टाइजमेंट कैरीज 4 मार्क्स. आई हैव गिवन प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन दैट वीडियो. प्लीज़ गो एंड वॉच. 4 मार्क्स इज़ नॉट लेस एक्चुअली, बहुत ज़्यादा है 4 मार्क्स, ओके. तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, वेरी इजी. देन यू हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू अ PDF ऑफ 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस. मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है PDF वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है ना. एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन फ्रॉम 2009 to 2016 क्वेश्चन पेपर सॉल्व का के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन ओनली ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो. आप लोग जो है वीडियो जाके चेक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है. तो एनी 5 आपको लिखना है, एंड ऑप्शंस गिवन आर हाउ मेनी? टोटल ऑप्शंस गिवन आर 6 हियर. तो आउट ऑफ 6 यू हैव टू राइट एनी 5. तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई एम जस्ट डिस्कसिंग सिलेबस हियर. फिर आपको ऐसे लिखना है. फॉर ऐसे एज वी सॉ 8 मार्क्स फॉर ऐसे, ठीक है. तो you have to write any one. So how many essays given? 2 essays given, and out of 2 you have to write any one, and consists of 8 marks. So this is your English and additional English syllabus. Okay, so I hope you have understood this thing. So I hope all of you have understood about the syllabus and the distribution of marks to the different sections for both English and additional English. Now let me tell you that till now syllabus is 100%, okay, full syllabus for 2022 SSLC class 10 board exams. There is no such update till now from the education board or the education departments, so we will follow 100% syllabus only. That is why I have made this video on the basis of the 100% marks. So thank you for watching the video, and subscribe to the channel, like the channel, and if you have anything to say, please feel free to comment in the comment section. That's all from me for today. Thank you so much. With love, Omni Gyan.